हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सही गाड़ी पर एक बार फिर से। आज मेरे साथ है हर्ष भाई। हाय। हर्ष भाई की सोनेट के अंदर हम बैठे हुए हैं। ये कौन सा मॉडल है सर? DCT HTX। ये HTX DCT है। ये टॉप एंड मॉडल पे आ जाता है आपका। इसके ऊपर शायद GT लाइन ही आता है सर। GT लाइन इसकी। ओके, और ये पेट्रोल है। यस, पेट्रोल। सो इनको लिए हुए आपको कितना समय हुआ है? 10 days। अभी 10-12 दिन ही हुए हैं। तो आपने 10 दिन पहले तक आपकी जो है रिसर्च चल रही होगी कौन सी गाड़ी लेनी है। रिसर्च I started doing in May and finalized in June, got the car in July। ओके, तो हर्ष भाई, जब आपने गाड़ी के लिए आपने कहा 2 महीने रिसर्च करी है, तो आपने काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखी होगी। अब कौन कौन सी देखी है वो बता दीजिए, फिर सोनेट के ऊपर आप कैसे पहुँचे? Sure। So I did a test drive of close to 20 cars। 20 कार्स? Yes। ओके। So I used to go to a showroom, whatever car is available in the showroom, I would just test drive all cars। So if I went to Honda, I tried Amaze, City, Elevate, went to Hyundai, tried Creta, Venue, few more cars, but close to the count was. For Kia also, I test drove all 3 models. Then within Seltos, so there was CVT, that also I did a test drive. So across different variants and different everything was automatic. So, but yes, close to 20 cars, 18-20 cars I did a test drive। ओके, सो आपका मतलब मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि कोई फिक्स नहीं था कि एसयूवी ही प्लेटफॉर्म लेना है। हाँ। आपका था कि यार सेडान या हैचबैक भी ली जा सकती है, या फिर Sedan I wasn't keen। I was okay initially। I was okay with an hatchback, but I still have that hatchback। So post that, when everyone, my parents were also there with me while I took the test drive, so वो upgrade का feel नहीं आ रहा था, in the hatchback। Though those hatchbacks were good, but then felt like a newer hatchback that what we are buying। So that was one of the key reasons to go for an SUV then। तो कौन सी गाड़ी आप पहले चला रहे थे हैचबैक में? I had गेट्स थी। ओके, Hyundai सो Getz। बलेनो या अल्ट्रोज वगैरह होती तो ये yes, प्रीमियम हैचबैक yes। सेगमेंट में Altroz also I tried, Tigor I tried, टाटा में भी सारे वेरिएंट्स जो भी थे, पंच ट्राई किया था। So everything I tried, but somehow I could then come up that between SUV and hatchback, then I decided to go ahead with SUV। ओके, सो जब आपने इतनी सारी गाड़ियाँ चलाई तो फिर एसयूवी ही लेना है कैसे डिसाइड हुआ, और सोनेट के ऊपर कैसे पहुंचे? Sure। So after deciding that want to go for SUV, Creta, Seltos, Venue and Sonet, these 4 were broadly which I shortlisted। The feature list I found it to be much better in case of Hyundai and Kia cars। That was one of the primary reasons। So I was already having a Hyundai car and I was already comfortable with the brand, etc. And the overall cabin look which was there, was much better in these 2 brands versus the other brands। ओके, सो आपने मतलब चुन लिया कि भाई किया ही मुझे लेनी है। फीचर्स आपने देखे, सारी चीज़ें देखी। अभी क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि डीसीटी फिर आप ऑटोमेटिक जब ले रहे थे, डीसीटी पे कैसे आए, और क्या आपने टाटा की गाड़ियाँ भी सर्च करी? क्या आपने टाटा नहीं बोला है लिस्ट में? तो नहीं, टाटा की ना सर्च, टिगोर, पंच, all those entire AMT range, even Altroz which has DCA। So even I did test drive of that। So why DCT? Okay, so I'll come to that as well। So one thing about DCT was it is very smooth। So AMT is out of question। So AMT is was like they would do the job। So someone who's buying a car for the first time and just going to automatic, AMT would do the job for them। उनके लिए काम हो जाएगा। Then CVT very smooth, but not as exciting as DCT। Okay। So I would say CVT would be a balanced gearbox for any person। DCT is for someone who wants a bit more excitement while driving, because the gear shift is very smooth in DCT। And torque converter petrol में काफी कम गाड़ियों में है। So I don't think I test drove any। I think torque converter I think मारुति की इसमें था, XUV में भी, और ब्रेजा के अंदर शायद TC आता है। अर्टिगा में है आई थिंक टॉक कन्वर्टर था। XL6 एंड अर्टिगा है टॉक कन्वर्टर, पर उसमें प्रॉब्लम क्या था कि आफ्टर ड्राइविंग इट बियॉन्ड अ पॉइंट, वो स्पर्ट इतना फास्ट देता था कि सो एनीवन हु सिटिंग इन द कार वुड फील दैट वो जर्क आ रहा है टॉक जैसे वो अनलॉक होता था ना। एंड वो सेम चीज DCT में मुझे फील नहीं आया। बट एक और चीज़ है, जैसे लास्ट सोनेट जो इसका प्रीवियस वर्जन था, उसके मैंने DCT चलाए थे,
सो वो सिर्फ स्पोर्ट्स मोड के अंदर बेटर परफॉर्मेंस देता था, बाकी ड्राइव मोड में उतना ज्यादा फील नहीं होता था कि डीसीटी वाले शिफ्टिंग हो रही है। जैसा डीएसजी वगैरह हम देखते हैं बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, तो वो चीज क्या इसमें है या फिर रिफाइन किया है इसको? अभी आप अगर नॉर्मल मोड पे चलते हैं, मैं आपको थोड़ा एक राउंड दिखा दूंगा नॉर्मल पे तो। सो आई हैव नॉट ड्रिवन द प्रीवियस वंस, सो आई डोंट नो, बट दिस डेफिनेटली बाय दैट, सो टिल नाउ आई हैव नॉट बीन driving the car very hard for initial few thousand kilometers. So, but irrespective of that, the gear shift is very smooth. I think once towards the second half of the video, we'll just take a drive around and you could see the shifting happening. So you could probably compare it maybe across modes. I can show you. That's not a challenge. Okay. So इस गाड़ी के अंदर कौन कौन से फीचर्स है जो कि आपको बाकी गाड़ियों में नहीं मिले? जैसे आपने कहा कि ज्यादा फीचर वाली गाड़ी थी, तो कौन से फीचर्स आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहे थे जो आपको बोल दिए कि यार सोनेटी लेना? Hands down, ventilated seat. मतलब ventilated seat. When I bought it, I don't know. I don't know when your viewers will also see the video. So few months down the line, probably more cars would come in. But for me, that was one of the deciding factors because I usually drive the car around myself. And typically, if I'm taking the car out, मतलब ज़्यादातर अगर मैं गाड़ी लंबा ले जाता हूँ तो बॉम्बे की गर्मी में ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है, तो यहाँ पे आपको वो हीट फील होता है। अभी तो बरसात का मौसम है जैसे आप देख रहे हो, तो अब फील नहीं होगा। बट एंड दूसरा चीज़ था इसमें जो इसका कैबिन, सो व्हेन आई वाज टेलिंग यू नो द कैबिन एक्सपीरियंस एंड कैबिन लुक व्हिच कम्स इन, यू नो दैट लुक्स वेरी प्रीमियम। तो कोई अगर गाड़ी में बैठता भी है उसको वो प्रीमियम फील आता है। देन फ्यू गुड थिंग्स विच आई रियलाइज, मतलब मुझे जो पता चला गाड़ी लेने के बाद वो भी अच्छी है। आई थिंक इसका साउंड सिस्टम जो फैक्ट्री फिटेड है, दिस डजंट हैव द बोस वाला, इसमें नहीं है बिकॉज ये HTX वेरिएंट है, बट जो फैक्ट्री फिटेड वाला भी है वो काफ़ी अच्छा है। लाइक आई हैव म्यूजिक एंथुसियास्ट फ्रेंड्स जिन्हों से ये फीडबैक आ गया कि भाई गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम अच्छा है। सो दिस वॉज समथिंग विच आई हैड नॉट टेस्टेड बिफोर, बट दैट इज अगेन Apple CarPlay integration, everything is smooth. And one more feature was front sensors. This variant has front sensors, which many few other cars I found जिनमें front sensors है, unless they are the top end variant. उनमें front sensor का actually काम main traffic की जगह में ही आता है, because गाड़ी का judgment आना SUV में थोड़ा time जाता है. So and in general also it becomes easier in bumper to bumper traffic also to drive. You know how much distance to maintain. These two features were something which I found were additional in this. ये 360 कैम नहीं है लेकिन सेंसर काफी है। सेंसर है, हाँ। So सेंसर से आपका 70-80% काम हो जाता है। एक और चीज, जैसे आपने एंड्रॉइड ऑटो की बात करी, तो ये एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो जो है वो वायरलेसली कनेक्ट होता है। Yes, वो वायरलेसली और वायरलेस चार्जर है गाड़ी के अंदर। So after I bought, they've got an upgrade. So this was so if someone who is buying, अभी कोई लेगा तो उसे 3 चीजें एक्स्ट्रा मिलेगी इसी वेरिएंट में, वायरलेस चार्जिंग, रियर वाइपर एंड अलॉय व्हील्स। तो ये 3 चीजें HTX वेरिएंट में ही उन्होंने ऐड किया है एज एन अपग्रेड, मिड ईयर अपग्रेड। ओके, इसके अलावा जैसे सीटिंग कंफर्ट वगैरह आपको कैसा लग रहा है अभी फिलहाल? सीटिंग कंफर्ट इज वेरी गुड। लाइक आई हैव गॉट फ्रंट 2 seats आर वेरी कंफर्टेबल, बिहाइंड आल्सो यू नो 3 people can fit. Not that, yes. Not at least जो 3 पीछे अब तक बैठे हैं, किसी से कंप्लेन नहीं आई है कि हम बैठ नहीं पा रहे। लेग स्पेस इफ यू कंपेयर, अगर इसको क्रेटा या सेल्टॉस से कंपेयर करेंगे तो लेग स्पेस इसमें कम है, बट इट्स नॉट बैड। यू कैन, इफ देयर आर 4 people then you will not feel the leg space problem any which way, because unless someone is you know too particular that they need certain leg space, because someone switching from a sedan will come here तो उसको वो कम mentally लगेगा बट पैर पे लगेगा नहीं। सो वैसा बिकॉज होता है काफ़ी बार, व्हेन आई ऑल्सो सैट बिहाइंड वाइल चेकिंग, तो इनिशियली मुझे लगा कि कम है, बट देन लेटर व्हेन आई यू नो सैट इन द कार सेकेंड टाइम व्हेन आई वेंट टू द शोरूम, तो तब मुझे ऐसा लगा कि इट्स नॉट दैट बैड। ओके, सो आपको कुछ ऐसे फीचर्स भी, क्योंकि गाड़ी लेने जाते हैं तो कुछ ऐसे फीचर्स एडिशनल मिल जाते हैं हमको जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, सो ये पर्पसली लिया है या फिर आपने मिल गया वाला फीचर है? नहीं, it was something good to have, like for me, because I usually prefer keeping it open. So मुझे था कि sunroof तो होना चाहिए, though I will not step out, but just for you know extra light and per se, so that way. एक्स्ट्रा लाइट सच में, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत हेल्प होती है दोस्तों। तो अगर मेरे साथ वीडियो बनाना है, नीचे लिंक है, मुझे नीचे कमेंट भी कर देना। और
ये लाइट्स वाली गाड़ी लेना बहुत हेल्पफुल होता है। ओके सो अभी लाइक लाइट्स तो ठीक है, बट व्हेन इट्स रेनिंग यू नो यू कैन जस्ट शो द कैमरा आल्सो द वे इट लुक्स। समवन कोई अगर पीछे भी बैठा है तो वो क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता। एंड देयर इज पीपीएफ आल्सो, सो व्हिच इज व्हाई इट इज नॉट वाटर वहाँ रुक नहीं रहा है। पीपीएफ आपने पूरे बॉडी पे करवाया है? पूरे बॉडी पे करवाया, वहीं शोरूम से करवाया? ये मैंने बाहर से करवाया। सो ये गाड़ी आपने ली, इंजन परफॉर्मेंस के बारे में मुझे जानना है, आपने कितनी चला ली है अभी तक और कैसा गाड़ी परफॉर्म कर रही है और एवरेज वगैरह क्या मिल रहा है ये भी आप? श्योर। सो मैंने क्लोज टू, सो मुझे एक ही हफ्ता हुआ है इफेक्टिवली, बिकॉज पीपीएफ में ही 3-4 दिन चले गए थे। सो इन लास्ट 1 week आई हैव ड्रिवन 300 किलोमीटर्स। मोस्ट ऑफ इट हैज बीन ऑन हाईवेज और एम्प्टी रोड्स एट नाइट। सो काफ़ी सो माइलेज में आपको ना इंडिकेटर पे ही दिखाई देता हूँ। ये अभी के जस्ट शॉर्ट जर्नी का है विच इज़ शोइंग 4.5। इतना बुरा नहीं होता, इधर ट्रैफिक भी था। देन 300+ kilometers on an average, 9.5, 9.7. So this is since the start of the vehicle, 318 kilometers driven, 9.7 is the average. And post refueling it's close to 11.8. This has mostly been on highways and empty roads. So and this has also been 50% on eco mode. And light pedal driving. So usually you could say average if you are driving in city के अंदर 8 का average हो जाएगा। City plus some highways, जैसे बॉम्बे में if you end up going from one part of the city to another, so you have those highways, मोटा मोटी वहाँ पे 10-1 का average हो जाएगा। Probably on emptier roads outside you could expect 12-14 का average हो सकता है इसमें। बट मेरे दर्शकों को ये चीज़ पचती नहीं है कि इतना एवरेज कम बोला, तो मैं बता दूं भाई, मुंबई में है ये यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है। हाँ जहाँ भी जाता हूँ तो अगर ट्रैफिक होता है तो मैं गाड़ी नहीं ले जाता हूँ काफ़ी बार, तो इसलिए वो ट्रैफिक यू नो एवरेज ज़्यादा है। एंड और ज़्यादा प्यार से भी चलाया हुआ है अभी तक, तो यू नो ज़्यादा रेव नहीं किया है गाड़ी को, बीइंग द न्यू कार। तो अगर आपको गाड़ी चलाने के लिए भी फील चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ अगर मैं महीने के 3-4 हज़ार रुपये भर रहा हूँ फ्यूल का, 20% का अगर मुझे फ़र्क पड़ेगा, 500,000 रुपये का मेरा फ्यूल एक्स्ट्रा हर महीने जाएगा। मुझे 500,000 भर के क्या मुझे मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, तो मेरा आंसर डेफिनेट यस है। तो आपको मतलब मैंने वैसा सोच के फ्यूल एफिशिएंसी, मैंने जहाँ भी टेस्ट ड्राइव की जो भी 20 गाड़ी का, मैंने कहीं पर भी फ्यूल एफिशिएंसी उनसे नहीं पूछी। एंड एक ही रीज़न था गाड़ी टेस्ट ड्राइव हर जगह करने का, बिकॉज आपको गाड़ी चला के ही समझ में आता है कि उसका रिस्पॉन्स कैसा है, क्या है। ऑब्वियसली वीडियोज़ देख के एक आइडिया लग जाती है कि कौन सा वेरिएंट में जाना है, किस में क्या जाना है। आपके चैनल के मैंने 1-2 सोनेट के वीडियोस भी देखे थे, सो उससे वेरिएंट का एनालिसिस हो गया था। एंड सोनेट ने काफ़ी ओवर द इयर्स ना वेरिएंट्स में काफ़ी चेंजेस किया है। एक और चीज़ अब याद आ रही है मुझे कि जैसे आपने कहा टेस्ट ड्राइव लिया आपने, तो हैंडलिंग और इसका जो ट्रांसमिशन रिस्पांस, तो वो काफ़ी अच्छा। डीसीटी के अलावा कुछ है नहीं मार्केट में, इसके अलावा डीसीटी शायद कोई देता नहीं है, वेन्यू देती है बस एक। तो कोई चांस ही नहीं है कि आप उस पर जाओ, तो किसी और गाड़ी पर जाओ। बट हैंडलिंग वगैरह कैसी है, इसका स्टीयरिंग रिस्पांस कैसा है, फीडबैक कितना अच्छा मिल रहा है आपको? फन टू ड्राइव जैसे आप कह रहे हो कि आपको फील किसी और गाड़ी में और बेटर हुआ था या फिर यहाँ सबसे अच्छा लग रहा है? सो टेस्ट ड्राइव के टाइम काफ़ी अच्छा फील इसका था, सेल्टॉस डीसीटी का। बट सेल्टॉस डीसीटी में एक है कि पावर बहुत ज़्यादा था। अभी आप अगर उतना ज़्यादा पावरफुल गाड़ी अगर आप लेके आप सिटी में चलाओगे, तो मुझे वैसा लग रहा था कि यू नो इट इज़ टू मच ऑफ पावर बीइंग यू नो अनयूटिलाइज्ड। सो देन आई वाज एंड सीवीटी भी था उसके, सेल्टॉस में सीवीटी वेरिएंट्स भी है। देन सीवीटी में जो जितना पावर था आई वुड से उतना ही पावर इसके 1 लीटर डीसीटी में। सो अगेन एंड इफ आई हैव टू कंपेयर द प्राइस वाइज भी अगर मैं देखूं, तो ये कम प्राइस में सेल्टॉस से ज़्यादा फीचर्स था। सो ऑब्वियसली स्पेस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है, बूट स्पेस एंड लेग स्पेस पर्टिकुलरली, एंड सनरूफ उसमें बड़ा मिल जाता था। बट जो प्राइस डिफरेंस भी था, कुछ few lakh rupees का डिफरेंस था, तो आई वॉज मोर हैप्पी विथ यू नो बाइंग अ स्मॉलर कार विथ मोर फीचर्स। एंड पार्किंग वगैरह के लिए मेरे लिए मेन रीज़न टू नॉट गो विथ बिगर कार वॉज पार्किंग स्पेस ऑल्सो। सो मेरे को पार्किंग स्पेस जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे भी इट वॉज डाइसी,
कि वो 300 मीटर्स जो एक्स्ट्रा है वो फिट होगा नहीं होगा, मुझे डाइसी था. दिस आई वाज 100% श्योर दैट दिस विल फिट बिकॉज मेरे बिल्डिंग में पुराना जनरेशन का क्रेटा फिट हो जाता है. आई वाज नॉट श्योर कि नया फेसलिफ्ट वाला क्रेटा या सेल्टॉस फिट हो नहीं हो. सो पार्किंग स्पेस was also one of the constraints while choosing the car. Okay, so बूट स्पेस की बात आपने बीच में करी, तो बूट स्पेस आपको अभी जो थोड़ा कम मिला है सेल्टॉस के मुकाबले, सेल्टॉस के मुकाबले कम है, अदरवाइज इनफ है. ओके. सो नॉर्मली अगर गाड़ी में 4 जन जाएंगे तो 2 सूटकेस तो आराम से आ जाएंगे. एक और चीज अभी मुझे जानना है कि इस गाड़ी में भी आपको कौन सी कमियां लगती है कुछ? हाँ, सो जो 3 फीचर ऐड किए वो तो मुझे मतलब बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ से अ वीक और सो, टाइमिंग बोलो, किस्मत बोलो, क्या बोलो, तो आई एम लूजिंग आउट ऑन द 3 फीचर्स. तो वो पेन तो डेफिनेटली है बिकॉज आई फील आई वुड हैव डिजर्व्ड दैट. सो जो रियर वाइपर है वो मेरे पास नहीं है, वायरलेस चार्जिंग नहीं है, एंड अलॉय व्हील्स इसमें नहीं है. द डिफरेंट व्हील्स है, दे डोंट लुक बैड. सो प्रीडोमिनेटली आई वुड से द रियर वाइपर एंड 360 कैम आई वुड से गुड टू हैव. अगर मिल जाता तो ठीक है, मतलब वो थोड़ा अच्छा हो जाता हमारे लिए. बट फ्रंट सेंसर्स है, सो आई डोंट थिंक इतना उसमें मिसिंग है. बट इफ यू आर आस्किंग मी स्पेसिफिकली सो देन आई वुड से दैट इज अ मिसिंग थिंग. सो दोस्तों, ये है एक्सपीरियंस हर्ष भाई की अपनी गाड़ी के साथ. अब क्यों चूज़ करी, ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि बूट स्पेस वगैरह का काफ़ी अच्छा सा कैलकुलेशन किया हुआ है. यही चीज़ जब आप सीएनजी या पेट्रोल या डीजल गाड़ी लेते हो तब भी मैं बताता हूँ कि भाई एक बार का कैलकुलेशन सोच के मत चलो, हर रोज़ का सोचो जो डेली चलाना है. बाकी आपको कैसा लगा, आपके क्या सोच विचार है इस बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर लिखकर मुझे पूछ लेना. थैंक यू. अगर आप पुणे शहर के अंदर हैं और अपनी गाड़ी के साथ अपना एक्सपीरियंस हमारे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डिटेल्स भी डाला है, वहाँ पर भी आप मुझे पिंग कर सकते हैं.